So for the last 2 days, we've been driving all the way from Zurich to Geneva, from Geneva to NSA, and now to Chamonix. So now in this place, we're going to stay for 2 days. I will give you a tour of the Airbnb, and this is one of my maybe one of the most productive unpaid job I would say is searching for the super sexy Airbnb locations. And जो सारे मेरे videos देखते होंगे आपने देखा होगा कितने सारे super वाले Airbnbs I've already covered. So this one is a nice one, and here is a small parking. Of course अपना वाला कार तो यहाँ पे fit नहीं होगा, so I've just kept my car outside. And पूरा घर ही बनाया गया है, you see, it's completely made out of wood. And itna hi hai, bas, that's all. They had one key here, and here you can actually just park your cycle, bike, or your ski stuff. I'll just give you to. I think this side it's closed. Probably will enter from this side. यहाँ पे तो रात में मस्त वाले वीडियो बनेंगे. Guess what? So this is how the house looks like. It's basically one single floor. And here we have the kitchen, here we have a study table, and then here. So after getting into the room, of course, we have the kitchen here, and kitchen पूरा fully fledged है. यहाँ पे chicken weekend सब कुछ आज बनेगा. Fridge तो पूरा full हो चुका है. Whatever we got, everything is filled. Next 2 days के लिए jam, cake, yogurt, eggs, chicken, fruits, then veg. A lot of stuff has been kept. Study table, and then a nice yes the study table for you, and then a washroom, and then this area is the best. यहाँ पे आज रात में आज मस्त 4-5 वीडियो तो मस्त बैठ के बनाने का है. The only thing is यहाँ पे अभी रात नहीं हो रहा है. रात बहुत लेट में होता है, close to 8:30 9:30 में जाके रात होता है. जब रात होगा उसके बाद ही जाके we can take some videos. And backyard also is very nice, clean. एंड यहाँ से खाली मैं सोच रहा हूँ कि मतलब स्नो के टाइम भी ये एरिया क्या दिखता होगा. ब्यूटिफुल. So in case if you need the link to the Airbnb, probably I will put it on my Instagram. So go ahead and follow me on Instagram. You can find the link to the Airbnb on my Instagram post. Beautiful. चलो यहाँ से वीडियो आएगा तो आपको मालूम चल जाएगा यहीं से ही आएगा. Done, and we'll go to the upstairs now. It's completely made out of wood. Alright, so we have just arrived at our location, and this is somewhere close to Chamonix, that is what they call. Close to 100 kilometers from NSA, maybe around 300, 400 kilometers, 500 kilometers from Geneva. Beautiful location. So this is our house. Probably I will just give you हाउस टूर. एंड ये वाला एरिया जस्ट इमेजिन कि जब यहाँ पे स्नो हो जाता है, बिकॉज आई वाज जस्ट टॉकिंग टू द ओनर, ही सेज जब यहाँ पे स्नो हो जाता है यू लिटरली कैन नॉट इवन पार्क द कार हियर, यू हैव टू पार्क द कार ओवर देयर. क्योंकि इतना ज़्यादा स्नो हो जाता है कि कार यहाँ तक आप ले भी नहीं सकते. एंड जस्ट इमेजिन द सेम प्लेस, एग्जैक्टली द सेम प्लेस ड्यूरिंग द विंटर्स, मे बी अराउंड लाइक Jan, Feb, December. This area is going to look crazy, absolutely crazy, man. It's so good, beautiful. I'll just show you the area a bit. Beautiful. And यहाँ से पूरा वो टाउन भी दिखता है. If you go down the lane, you can actually see that. So now we go to the first floor, and ये वाला एरिया पूरा मतलब जैसे मूवीज़ में रहता है एल्पेन विलेज, वैसा वाला पूरा प्रॉपर वाला व्यू है यहाँ पे. ये जगह कौन देखा हुई थी वो, जस्ट इमेजिन विंटर स्नो ही गले तो फुल स्नो ही जो थी वो ब्यूटिफुल. सो ये ह्यूज टीवी. Hey, what is that? Yeah, full. It's all proper paint. Christmas vibes. We have one bed, huge TV, and that's all. It's basically kind of one room, one bedroom setup.
टीवी, बेडरूम, किचन, मोर देन इनफ. इतना ही चाहिए. एयरबीएनबी इतना हो गया तो यू कैन इजीली स्टे, गेट योर जॉब डन. बेस्ट थिंग इज इफ यू हैव टू शूट अ कोर्स और यू आर वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट, ऐसा वाला एक घर ले लो कुछ दिनों के लिए एंड यू विल बी डन विथ इट. टाइम ऑलमोस्ट इज 10 p.m. and 10 p.m. looks something like this. Beautiful. अगर 10 p.m. ऐसा दिखता है, just imagine how it feels. It's so clean here. Fresh. मैं तो अभी यहीं पे बैठ के लास्ट 2-3 घंटे से काम कर रहा था. ऑलमोस्ट एडिटेड 2 लॉन्ग वीडियोस यहीं पे ही बैठ के. ऐसा जगह होगा तो आई कैन इवन शूट फुल कोर्स ऐसे यहीं पे ही ऐसे ही बैठ के आई कैन फिनिश. एंड वैसे भी प्लान में 2-3 कोर्स पूरा शूट करना है. लाइक दैट डिजिटल प्रोडक्ट्स नीड्स टू बी फुल्ली शॉट, ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग नीड्स टू बी फुल्ली शॉट. उसके बाद जाके हाउ टू बिकम ए फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर, उसका ये पूरा फुल शूट होगा. उसके बाद जाके हाउ टू बिकम ए 1 मैन सोलो बिजनेस ओनर, उसका एक पूरा एंड टू एंड पूरा शूट होगा. सो 4-5 कोर्स तो ऐसे ही शूट करना है. बट आई एम प्रीटी श्योर दुबई में रहूँगा तो आई कैन नॉट शूट. सो व्हेन एवर हैव टू शूट एनी कोर्स व्हाट आई डू इज आई नॉर्मली ट्रैवल एंड स्टे बैक, फिनिश एवरीथिंग एंड जस्ट कीप माई माइंड फुल्ली क्लियर. एक बार बैठता हूँ, 4-5 दिन लगता है, क्लोज टू 10-20 आवर्स ऐसे ही शूट हो जाता है एंड जॉब डन. दैट इज़ व्हाट द प्लान इज. एंड बट ऐसा शांति चाहिए. दुबई में तो इट्स नॉट पॉसिबल. दुबई में इतना सारा फ़ोन बजता ही रहता है, कोई 1000 काम याद आते रहते हैं. सो यू रियली नीड टू ट्रैवल एंड एक्चुअली डिस्कनेक्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, देन ओनली यू शुड बी एबल टू shoot all these important courses. Okay, so normally a lot of people who have been watching my videos for so many years, उनको मालूम ही होगा whenever I'm traveling, the main 2 things what I always keep on exploring is about the real estate, taxes and about businesses worldwide. So France, हम लोग जब last बार आए थे, we were in Paris, we were in Saint Michel, so I did not get time because families were with us. Tapa's family was with me and everyone. We were just too busy. I was just too busy handling both the families. So last time I did not get time. So this time I finally had time, and we have been working with a lot of French clients for the past 16-17 years. I have many clients still whom we sold a lot of extensions, websites back in 2012, 13, 14, 15. So a lot of clients. So there many people know me here. So I was just talking to a client and he got in touch with one of his brokers. I was talking to him as well. So I was just trying to understand कि फ्रांस में कैसे काम करता है. कि if you are someone is a foreigner और फॉरेन इन्वेस्टर, अगर आप फ्रेंच रेसिडेंट नहीं हो या फिर फ्रेंच पासपोर्ट वाले नहीं हो, फ्रेंच नहीं हो, ऑफिशियल फ्रेंच सिटीज़न नहीं हो, तो आप कैसे घर खरीद सकते हो. तो इनका प्रोसेस जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट द गुड थिंग इज़ फ्रेंच गवर्नमेंट बेसिकली अलाउज यू, अगर आपके पास पैसा है then you are allowed to buy and invest and even earn returns as well. तो ऐसा नहीं है कि ये लोग मतलब रेस्ट्रिक्ट करते ही नहीं, अगर आप फॉरेनर हो तो आप घर नहीं खरीद सकते. यू कैन एब्सोल्युटली बाय द हाउस. फॉर एग्जांपल आई वाज जस्ट चेकिंग, हम लोग अभी जो लोकेशन पे हैं, इट्स अ वेरी नाइस क्यूट लोकेशन. इट्स नियर चैमोनेक्स, इट्स ए स्की टाउन. तो यहाँ पे लाइक दो स्मॉल वंस लाइक दिस वन इज़ अ 1 bedroom one. दिस इज़ समवेयर क्लोज टू ए प्राइस ऑफ ए Ferrari 296, क्लोज टू 500K बोले तो 5 से 6 करोड़ के अंदर 1 bedroom. 2 bedroom is somewhere around 10 crore. 3 bedroom is somewhere close to 15 to 16 crores. It depends, something like that. I was just checking, and also he took me to check 2 or 3 homes right now. Close by in the close locations. I think almost every house was almost the same price. So price के हिसाब से उतना ही है. So I was just asking him कि भाई कैलकुलेशन में बताओ कि अगर someone is investing let's say $500K और let's say 5 या 6 करोड़ अगर कोई इन्वेस्ट करता है 1 bedroom पे, तो रिटर्न क्या है.
तो पहले तो ही वाज़ एज़ यूजुअल रियल एस्टेट एजेंट जैसे करते हैं, ही वाज़ हेजिटेंट टू गिव मी द एग्जैक्ट फिगर्स। तो मैंने बोला नहीं नहीं, आई नीड एग्जैक्ट फिगर, जस्ट गिव मी एन एग्जांपल जस्ट इन केस इफ आई एम प्लानिंग टू बाय वन। तो क्या रिटर्न्स का क्या है सीन है मेरे को बताओ। तो मैंने उसने मेरे को पूछा कि आप कहाँ से आए हो। तो मैंने बोला कि हम दुबई से हैं, इंडिया से हैं, दुबई में रहते हैं, सो आई नो हाउ इट वर्क। सो द मोमेंट आई सेड नेम दुबई, ही ऑलरेडी न्यू कि चलो ठीक है, इनको रियल एस्टेट बारे में मालूम ही होगा, तो ही कैन नॉट प्ले अराउंड विथ मी। तो उसने बोला कि ऑफ कोर्स इफ़ यू आर ए फॉरेन इन्वेस्टर प्रॉब्ली यू शुड नॉट इन एक्सपेक्ट एनीथिंग मोर दैन 3 or 4% ROI, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नॉर्मली एजेंट्स आपको कहेंगे कि यू कैन अर्न अप टू 6 to 7%, बट आपके पास जितना सब चार्जेस जाने के बाद यू आर नॉट गोइंग टू मेक एनीथिंग मोर देन 2 to 3%। तो मैंने बोला कि ऐसे कैसे, इतना 2% तो कोई फ़ायदा नहीं है, उससे अच्छा हम बैंक में पैसा रखें। अगर बैंक में पैसा रखेगा तो कुछ काम नहीं करके वैसे भी आपको 3 से 4% तो ऐसे ही मिल जाता है। एंड अगर आप मतलब फ्यूज डिपॉजिट करते हो तो आपको 6 या 7% ही मिल जाएगा, बट ऑफ कोर्स कैपिटल ग्रो नहीं करेगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हो, मे बी अगर आप रिस्क की ETFs में भी डालते हो, कुछ भी करते हो, स्टिल यू शुड बी एबल टू मेक एनीथिंग मोर देन 6-7% तो आप आराम से बना सकते हो। तो वाई वुड समवन टेक ए रिस्क एंड पुट इट ऑन रियल एस्टेट एंड गेट ओनली 2 or 3%। तो उसने मेरे को समझाया कि, मैंने बोला कि ब्रेकडाउन मेरे को देखो, इतना कम तो नहीं हो सकता, ब्रेकडाउन मेरे को बताओ। तो उसने मेरे को एग्जैक्टली ब्रेकडाउन दिया। जैसे फॉर एग्जांपल 1 bedroom को उसने ब्रेकडाउन दिया कि अगर आप एक 1 bedroom खरीदते हो समवेयर क्लोज टू 500K डॉलर्स, 500K यूरोज़, देन आपको नोटारी एक है उनके थ्रू ख़रीदना ही पड़ेगा। तो उसमें आपको लग जाएगा क्लोज टू 30 से 40,000 डॉलर्स, 40 नहीं 40 या 50,000 ऐसे कुछ बोल रहा था, इतना कुछ आपको चार्जेस लग जाएगा इफ़ यू आर लुकिंग टू बाय इट। एंड वो पेपर वर्क वो सब उसके अंदर चले जाएगा। उसके बाद जाके आपको, जैसे ही आप मतलब ईयरली आप जितना ही पैसा कमाओगे वहाँ से आपको टैक्सेस भी जाएगा। लेट्स से इफ़ यू आर अर्निंग like probably will make for a 1 bedroom maybe 35,000 or probably around 40,000 euros in a year। उसमें से आपका 5-6 हज़ार चले जाएगा टैक्सेस में। उसके बाद आप खुद तो मैनेज नहीं करोगे। अगर आप मतलब दुबई में रहते हो, इंडिया में कहीं भी रहते हो, अगर आप फ्रांस में घर रखते हो तो इसको आप खुद तो मैनेज नहीं करोगे, कोई एजेंसी को दोगे, वो एजेंसी जो एयरबीएनबी में मैनेज करेगी या फिर कहीं भी मैनेज करे, गोडा, एयरबीएनबी, Booking.com, वो उसका चार्जेस भी लेगा। उसके बाद जाकर मेंटेनेंस भी है, इंश्योरेंस भी है, ये सब कुछ काट कूट के आपको एंड उसने मेरे को एग्जैक्ट फिगर्स बताया। इट्स ऑन माई फ़ोन, I was just trying to calculate on my paper and pen as well। मैंने देखा कि 2-3% से ज़्यादा तो है ही नहीं। सो बेसिकली इट मेक्स नो सेंस टू पुट मनी इनटू इंटरनेशनल रियल एस्टेट। मैंने जितना देखा है, क्योंकि 2-3% ROI तो कोई फ़ायदा नहीं। उससे ज़्यादा दुबई में ही आप घर खरीद के रेंट में दे दो, आराम से आपको 6-7% तो आराम से मिल ही जाएगा। अगर आपको अच्छा खासा मतलब थोड़ा ऑफ प्लान ले लेते हो, मे बी दूर भी थोड़ा ले लेते हो, मे बी यू कैन ऑल्सो अर्न 10%। जिन्होंने खरीदा होगा मे बी 2 या 3 साल पहले किसने घर खरीदा होगा, दे वुड बी ईजिली मेकिंग 10 to 12% ROI as well। So Dubai is, I would say, the best place to actually buy a house and put it on rent and earn some passive income। फॉरेन में मैंने देखा कि रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एवरीवेयर आई हैव चेक्ड, इवन द US एज वेल, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वैसा कुछ खास है भी नहीं। एंड आई वाज जस्ट आस्किंग देम कि क्रिप्टो का क्या सीन है, क्रिप्टो डू दे एक्सेप्ट। तो उसने बोला कि नो, इन फ्रांस यू कैन नॉट गेट योर क्रिप्टो डायरेक्टली एक्सेप्टेड, बट व्हाट यू कैन डू इज़ आपको रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा कि आई नीड टू पे विद क्रिप्टो। देन यू हैव टू एग्जैक्टली वेरीफाई द सोर्स ऑफ फंड्स कि वो पैसा कैसे आया, कहाँ से आया, किसने दिया। अगर आप इफ़ यू अर्नड इट थ्रू एफिलिएट्स, हाउ, विच कंपनी, विच ब्रांड, विच वेबसाइट, विच वेंडर, विच कंपनी, ऑल द डिटेल्स। And once it's verified, then absolutely you should be able to do it, but it has to go through one licensed crypto provider here in France, and uske baad your payment can be done. So that is also a good thing कि if you have clean crypto, if you really have a proper trail and source of funds कि आपने वो पैसा कैसे कमाया हुआ है, you should be able to use your crypto to actually buy a house in France as well। That is one of the only good thing that we had taken out from today's meeting। तो मैंने वही देखा कि अगर पैसा है तो भाई बेस्ट इज़ दुबई में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में तो आई हैव सीन
अगर आपने आजकल मेट्रोज पकड़ो या नॉर्मल इवन टियर 3 सिटीज़ में घर का प्राइसिंग इज़ बोगस, लाइक इवन इन भुवनेश्वर इन माई सिटी द प्राइसिंग इज़ एब्सोल्युटली एब्सर्ड, स्टूपिड प्राइसिंग। एंड उसमें से मेरे को नहीं लगता अगर कोई खरीदेगा भी वो प्राइसिंग में दे वुड बी एबल टू मेक एनी ROI एट ऑल। 2-3% लगे क्या ही करोगे, उससे अच्छा पैसे को बैंक में ही डाल दो। एनीवेज दैट इज़ हाउ इट इज़। सो फ्रांस का अपना रिसर्च हो गया, तो वही है कि इट मेक्स नो सेंस टू एक्चुअली पुट द मनी इन countries like this until unless you're someone who is planning to stay and use it on your own, and it's something like you absolutely love it, you don't want to check about ROI, return of investment, it's absolutely for end use and you are looking to only buy it, use it, then maybe it makes sense. Or else if you're planning to put something international markets your money and planning to get some return of investment, I would say except Dubai there is no other good option. Let me know anyways in the comments if you feel anything else as per your view, then maybe I can do a bit of research, but I'm pretty sure I've already done a lot of bit of research. Except though I don't see any proper safe space to actually invest your money and get the right returns.